اگر آپ روزانہ یوٹیوب شارٹس اپلوڈ کر رہے ہیں لیکن ہر ویڈیو پر صرف 100 200 500 یا 800 ویوز آ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آخر میری شارٹس پر کیوں 1000 ویوز آتے ہیں، اس سے آگے کیوں نہیں جاتی، تو یہ ویڈیو بند مت کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ آپ کی محنت میں نہ ہو، مسئلہ صرف یہ ہو کہ یوٹیوب کو آپ صحیح طریقے سے اپنی ویڈیو کو سمجھا ہی نہیں پا رہے۔ اور آج آپ کو میں 6 ایسی وجوہات بتانے والا ہوں جن کی وجہ سے شارٹس کو ویوز نہیں مل رہے ہوں گے، اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اگلی شارٹس صرف چند سو ویوز پر نہ رکے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، لوگ آپ کی شارٹس کو دیکھنے کے بجائے سوائپ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اہم چیز سمجھیں، جب آپ کی شارٹس کسی شخص کے سامنے آتی ہے، ویور کے سامنے آتی ہے، تو اس کے پاس صرف 2 ہی کام ہوتے ہیں، یا تو وہ رک کر ویڈیو دیکھے گا یا فوراً سوائپ کر دے گا۔ یہی چیز آپ کی شارٹس کی پرفارمنس پر بہت بڑا اثر ڈالتی ہے۔ مثلاً اگر 100 لوگ آپ کی شارٹس کو دیکھ رہے ہیں لیکن 70 لوگ رک کر دیکھتے ہیں اور 30 لوگ اس کو سوائپ کر دیتے ہیں، تو یہ ایک اچھا سائن ہے، اچھی شارٹ ہے آپ کی۔ لیکن اگر زیادہ تر لوگ پہلے ہی لمحے میں رک کر سوائپ کر رہے ہیں تو یوٹیوب کو یہ سگنل ملتا ہے کہ آپ کی ویڈیو لوگوں کو روک نہیں پا رہی، اور پھر ویڈیو کی ریچ محدود ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ شروع ہی میں سوائپ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی زیادہ تر وجہ ہوتی ہے وقت اور کمزور ہوک۔ آپ کی شارٹس کے پہلے 1 یا 2 سیکنڈز بہت ہی اہم ہیں۔ شروع میں کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی سلمان اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے والا ہوں۔ بھائی وہ اہم بات کے اوپر آپ سیدھا آئیں، ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب تک آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، لوگ سوائپ کر کے آپ کی اہم بات سے پہلے ہی آگے نکل گئے ہیں۔ تو اہم بات سب سے پہلے، اور اس وقت آپ نے ایسی بات کرنی ہے کہ جس سے لوگوں کے اندر یہ تجسس پیدا ہو، وہ یہ دیکھیں کہ بھائی مجھے یہ شارٹ دیکھنی چاہیے۔ تو اگر آپ کی پہلی شارٹس جو ہیں یا آپ کی جو بھی شارٹس ہے اس کے اندر 1000 ویو سے زیادہ وہ آگے نہیں جا رہی، تو اس غلطی کو پہچانیں اور یہ غلطی فوراً بند کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو اچھی ہونے کے باوجود اس پر ویوز نہیں آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے ہی لمحے میں ویورز کو وہ وجہ تو دے دیتے ہیں کہ وہ رک جائے، لیکن آپ کی شارٹس کے اندر آگے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ اسے غیر ضروری طور پر آپ نے اس کو لمبا کیا ہوا ہے۔ تو کبھی بھی شارٹ کو غیر ضروری طور پر لمبا مت کریں۔ اگر 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں آپ بات مکمل کر سکتے ہیں تو اسے 40 سیکنڈ تک، 1.5 منٹ تک، 3 منٹ تک مت لے کے جائیں۔ آپ کا مقصد صرف ویڈیو بنانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، رکیں اور آخر تک دیکھیں۔ ٹھیک ہے جی؟ دوسری بات جو غلطی ہو سکتا ہے آپ نے بھی کی ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ کی ہو، لیکن یہ آپ سن لیں غور سے۔ دوسرا کہ آپ کا چینل بالکل ہی نہیں ہے۔ اب یہ غلطی بہت سے، میں کہتا ہوں کہ بیشتر جو ٹیوبرز ہیں جو نئے آتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک نیا گوگل اکاؤنٹ بنایا، یوٹیوب اکاؤنٹ بنایا، اور اسی چینل پر ایک ہی دن کے اندر 4-5 شارٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیں، پھر چند گھنٹے کے بعد دوبارہ آئے، اس کو کھول کے دیکھا، 0 ویوز، دوسری شارٹ 7 ویوز، تیسری شارٹ 12 ویوز۔ آپ سوچتے ہیں یار یوٹیوب نے تو میرا کنٹینٹ ہی جو ہے اس کو لفٹ نہیں کرائی، اسے پش نہیں کی۔ لیکن اگر آپ کا چینل بالکل نیا ہے تو تھوڑی سی پیشنس رکھیں جناب۔ نئے چینل کو پہلے آپ کو کچھ اس کے اندر ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی۔ وہ کیا ایکٹیویٹی ہے کہ آپ اس کو ایز اے اپنے عام اکاؤنٹ کے طور پہ، یوزر اکاؤنٹ کے طور پر یوز کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ دوسروں کی ویڈیوز دیکھیں، لائک کریں، مناسب جگہ پر کومنٹس کریں، مختلف چینلز کے ساتھ ایک قدرتی انداز میں، نیچرل انداز میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں۔ یعنی کہ آپ کا اکاؤنٹ صرف شارٹس اپلوڈ کے لیے نہ ہو، اسے عام یوٹیوب یوزر کی طرح استعمال کریں۔ لیکن یہاں ایک بات واضح طور پہ آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں 2 ہفتے ویڈیوز دیکھوں گا تو میری شارٹس اب لازمی طور پر وائرل ہو جائیں گی، تو بھائی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، کیونکہ اصل چیز تو اینڈ میں آ کے وہی آپ کے کنٹینٹ کی کوالٹی
और ऑडियंस का रिस्पॉन्स ही है, लेकिन ये एक तरीक़ेकार है। तो इसलिए जो बिल्कुल नया अकाउंट हो उस पर फ़ौरन ही जाके बहुत ज़्यादा अपलोड शुरू करने के बजाय पहले उसे एक नॉर्मल अंदाज में यूज़ करें ताकि एक बेहतर अप्रोच बने। ठीक है जी। और अब आते हैं हम नंबर 3 की तरफ। कभी कभी शॉर्ट्स को शुरू में ही सही पुश नहीं मिलती। अच्छा जी, एक बात सुनकर आपको थोड़ा सा, मैं आपको कहता हूँ कि सुकून मिलेगा, वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि हर कम व्यू वाली शॉर्ट्स ख़राब ही हो। कभी कभी अच्छी वीडियो भी शुरू में बहुत एक्सपेक्टेड जो आपको रीच है वो नहीं दे पाती। ठीक है जी, आपने एक अच्छी शॉर्ट बनाई थी, अच्छा हुक था, अच्छी एडिटिंग भी थी, लेकिन फिर भी 48 घंटे गुजर गए और व्यूज़ बहुत कम हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन ये फ़ैसला ना करें कि मेरा तो चैनल ही ख़त्म हो गया है, इतनी अच्छी मैंने बनाई थी वो भी नहीं चली। तो कभी कभी यूट्यूब को आपकी वीडियो को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए, ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए वक्त लग जाता है। इसके लिए शॉर्ट्स को थोड़ा वक्त दें, और अगर काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी वीडियो बिल्कुल मूव नहीं कर रही तो आप अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा चेक कर सकते हैं। मसलन क्या है कि हुक क्या है, टाइटल क्या है, प्रेजेंटेशन ठीक है कि नहीं है, तो आप उसी वीडियो को दोबारा से एक नया रूप देकर दोबारा लगाएं। ठीक है जी। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि हर कम व्यूज़ वाली शॉर्ट्स को आप डिलीट करेंगे फिर उसको दोबारा से अपलोड करेंगे तो वो चली जाएगी, लेकिन ये एक आपका प्रोसेस है। ठीक है जी। तो इसका असल मकसद ये होना चाहिए कि आप टेस्ट करेंगे, डाटा देखेंगे और फिर फैसला करेंगे। ठीक है जी। अब आते हैं हम नंबर 4 की तरफ। आपकी टैग स्ट्रेटजी बेतरतीब है। ठीक है जी, ये भी एक बात बहुत अहम सुन लें, आज के दौर में एसईओ की अहमियत बहुत कम रह गई है। तो लोग क्या करते हैं, अभी तक उनके जहन में वो पुराना एसईओ चल रहा है कि शॉर्ट्स अपलोड की और रैंडम टैग्स डाल दिए, गैर ज़रूरी स्टफ भर दिया। मिसाल के तौर पे हैशटैग वायरल, हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग FYP, हैशटैग ट्रेंडिंग, हैशटैग मतलब जो चल रहा है ना इस वक्त आपने वो डाल दिया, हैशटैग मतलब फीफा। भाई आपकी वीडियो उससे मुतल्लिक नहीं है, आप ये समझ रहे हैं कि मैं इस किस्म के हैशटैग डालूंगा तो ये लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप हैशटैग्स की या टैग्स की लंबी लिस्ट डालने के बजाय आप ऐसा करें कि उन्हें कम से कम रखें और अपना जो कंटेंट है उसके मुताबिक रखें। मतलब फ़र्ज़ कर लें कि आपकी एक शॉर्ट है वर्कआउट के बारे में कि घर पे वर्कआउट कैसे करें। ठीक है जी, तो आप उसके रेलेवेंट टैग्स डालें। ठीक है कि वर्कआउट इन होम, एक्सरसाइज एट होम, होम वर्कआउट, या अपनी नीच से मुतल्लिक जो भी आपकी नीच है उससे मुतल्लिक टर्म रख सकते हैं, जैसे फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, वर्कआउट। यानी टैग्स का मकसद ये होना चाहिए कि यूट्यूब को आपके कंटेंट की जो सियाक व सबाक है उसे समझने में मदद मिले। ठीक है जी। तो ये एक बहुत अहम बात है, आपको चाहिए कि YouTube की स्ट्रेटजी को समझें। नया AI का दौर है, अब SEO उस तरीके से काम नहीं करता जैसे पहले करता था, और अगर जो पहले भी करता था तो तब भी अगर आप ये काम करेंगे तो आपकी वीडियो को नुकसान ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो याद रखें, असल गेम हुक, रिटेंशन और ये सेटिस्फेक्शन है और कंटेंट की क्वालिटी ही है। मैं बार बार एक बात करता हूँ। और नंबर 5, आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। ओह माय गॉड, आप समझते हैं कि जनाब मैं बेबहा शॉर्ट्स अपलोड करूंगा तो अब ये वायरल हो जाएंगी। ये बात आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन ये मैं बात आपको ख़ास तौर पर बता रहा हूँ कि अगर आपका चैनल नया है या छोटा है तो ये मत करें कि भाई सुबह एक शॉट डाली, दोपहर को दूसरी डाल दी, शाम को तीसरी डाल दी, रात को चौथी डाल दी, फिर एक पांचवी डाल दी सोने से पहले, फिर आप उसके बाद व्यूज़ देख रहे हैं कि ये क्यों नहीं चली, इस पर व्यूज़ क्यों रुक गए हैं, इस वाली को पुश क्यों नहीं मिले। तो मेरा मशवरा ये है कि शुरू में क्वालिटी और मुस्तकिल मिजाजी को आप तरजीह दें, इसको प्रायोरिटी दें। मसलन रोज़ एक अच्छी शॉट बनाने पर फोकस करें। इस तरह आप हर वीडियो को एक प्रॉपरली टेस्ट भी कर सकेंगे, आपको पता चलेगी आपकी परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ लोग ड्रॉप करते हैं। ठीक है जी, कौन सा टॉपिक चल रहा है, ये आपको सारी बातों की समझ लगेगी और फिर आप अगली शॉट्स इससे बेहतर बना सकेंगे। याद रखें, रोज़ाना 5 कमज़ोर शॉट्स बनाने से बेहतर है कि एक ऐसी शॉट बनाएं जिसे देखकर लोग स्वाइप ना करें। आप पहले क्वालिटी लाएं, उसके बाद क्वांटिटी लाएं। ठीक है जी। नंबर 3, टाइटल के अंदर प्लीज़, टाइटल आपका एसईओ नहीं है।
टाइटल के अंदर हैशटैग भरना बंद कर दें। ये याद रखें, टाइटल आपका एसईओ नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और ये बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने टाइटल को समझते हैं कि ये एसईओ का तरीका है, वो उसके अंदर हैशटैग पे हैशटैग भरे जाएंगे। मिसाल के तौर पे अमेजिंग यूट्यूब टिप्स के लिए आप दे देंगे फिर हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग वायरल, हैशटैग ट्रेंडिंग, हैशटैग एफवाईपी। ओ भाई, ये कैसा टाइटल बना दिया, किसी को पढ़ने की दिल ही नहीं करेगा। तो आपका टाइटल असल में सिर्फ ये होता है कि व्यूअर इसको देखे, ठीक है जी, और देख के रुके, वो ये देखे कि मेरे लिए इस वीडियो के अंदर क्या है, और उसके जहन में एक तजस्सुस पैदा हो, ठीक है जी। मिसाल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप ये बनाएं टाइटल कि आपकी शॉर्ट्स 1000 व्यूज़ पर क्यों रुक जाती है, आपकी शॉर्ट्स 1000 व्यूज़ पर क्यों रुक जाती है, ठीक है जी। या यूट्यूब शॉर्ट्स पर व्यूज़ नहीं आ रहे, ये 6 गलतियां चेक करें, ठीक है जी। ये जो टाइटल हैं दोनों, ये व्यूअर को एक क्लियर रीज़न देते हैं कि वो इस वीडियो को देखें। अगर अब यहाँ पे आप हैशटैग तुम देंगे तो फिर बात तो नहीं ना बनेगी। तो हैशटैग इस्तेमाल करने हैं तो उन्हें मुनासिब जगह पर ही रखें, लेकिन टाइटल की पूरी जगह हैशटैग के लिए नहीं है। इसको क्लियर रखें और इसको इंटरेस्टिंग रखें, ये ज़रूरी है। अब असली बात सुने, अगर आपकी शॉर्ट्स मुसलसल 1000 व्यूज से कम रह रही हैं तो ये मत सोचें कि मुझे YouTube पुश नहीं कर रहा। हमें पहले ये 6 चीज़ें चेक करनी होंगी। आपने ये 6 चीज़ें चेक कर लेनी है, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 कि क्या लोग पहले सेकंड में स्वाइप कर रहे हैं, ये आपने चेक करना है। नंबर 2, क्या आपका चैनल बिल्कुल नया है, क्या आपको कुछ शॉर्ट्स को शुरू में कम रीच मिली है और आपने फ़ौरन ये अज्यूम करके बैठे हुए हैं कि मैं नाकाम हो गया हूँ। नंबर 4, क्या आपकी टैग स्ट्रेटजी बेतरतीब तो नहीं है, क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा शॉर्ट्स एक दिन में अपलोड तो नहीं कर रहे हैं, क्या आपको अपने टाइटल में हैशटैग तो नहीं भरे हुए हैं, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। और फिर उसके बाद सबसे अहम बात यह है, मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ कि व्यूअर्स को देखकर हिम्मत ना हारें। कभी कभी एक शॉर्ट्स सिर्फ 50 व्यूज़ लेकर आएगी, दूसरी 200 लेकर आएगी, तीसरा 800 लाएगी, एक लंबे अरसे तक ऐसे चलता रहेगा। फिर अचानक एक शॉर्ट्स जो है वो 10,000 लाएगी, 50,000 लाएगी, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है लाख ले आए, ठीक है जी। और यही शॉर्ट जो है वो आपको चैनल को चला दे, आपको मोनेटाइज करवा दे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, टेस्टिंग करना होगा, हर वक्त हुक को बेहतर करना होगा, एक नया टॉपिक आजमाना होगा, अपनी एडिटिंग बेहतर करनी होगी, एनालिटिक्स को पढ़ना आपको आना चाहिए, उसको देखें फिर दोबारा कोशिश करें, ठीक है जी। यूट्यूब शॉर्ट्स में कामयाबी का कोई एक जादुई बटन नहीं है। जो लोग कामयाब हैं वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने आप को हर अगले स्टेप पे बेहतर करते हैं, ठीक है जी। तो आपको ये डाटा पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। कंटेंट को बेहतर करना है, हर स्टेप पे बेहतर करना है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहना है। अगर आपकी शॉर्ट्स अभी भी 1000 से व्यूज़ कम ले रही हैं तो कमेंट्स में ये लिखें कि मेरी शॉर्ट्स नहीं चल रही। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में आपको एक ऐसी शॉर्ट स्ट्रेटजी दूं जिससे आप अपने हुक, रिटेंशन और व्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप बेहतर कर सकें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शॉर्ट्स बनाते रहें, टेस्ट करते रहें, और सबसे अहम बात, आपने हिम्मत नहीं हारनी, मैं आपके साथ हूँ।